सर शुरू करें सर? जरूर करिए, जरूर करिए। मेरी गलती है, लेट आ गया मैं। सर बस अटेंडीज आ रहे हैं, अटेंडीज थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रवीण जी शुरू कर दें, इतने वेलकम एड्रेस वगैरह होगा ना? ठीक है सर, ठीक है सर। मैं ये आज की वीसीएम स्टार्ट करता हूँ और इसमें मैं सबसे पहले आज हमारे आज के गेस्ट स्पीकर सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को सबसे पहले इनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस वीसीएम में। और इनका नाम सहारन इंडिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं खुद इनको लगभग 20-25 साल से अधिक समय से सुनता आ रहा हूँ। इज ए रिनाउंस्ड फैकल्टी ऑन इनकम टैक्स सब्जेक्ट। आज इन्होंने इस वीसीएम के लिए समय निकाला, इनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम मॉडरेटर श्री अतुल अग्रवाल जी, ये मेंबर CIRC रीजनल काउंसिल और चेयरमैन सिकासा, इन्होंने काफ़ी करके इस प्रोग्राम को अरेंज कराया, टाई अप किया सब ब्रांचेस के साथ। उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम चेयरमैन श्री महेश कुमार गुप्ता जी, इज़ ए वेरी सीनियर मेंबर ऑफ सहारनपुर ब्रांच। इन्होंने इज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चेयरमैन ऑफ दिस VCM। मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। और इस VCM में हमारे साथ जुड़ी आज की 2 ब्रांचेस, ब्रांच मुजफ्फरनगर के चेयरमैन श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री संजय सिंगल जी वाइस चेयरमैन, श्री गौरव गर्ग जी सेक्रेटरी, श्री निखिल अरोड़ा जी और श्री नितिन अग्रवाल जी एग्जीक्यूटिव मेंबर मुजफ्फरनगर ब्रांच। और हमारे हरिद्वार ब्रांच के चेयरमैन श्री राजीव कुमार शर्मा जी। आपकी आज की VCM में आप सभी का स्वागत है। और हमारी ब्रांच के चेयरमैन श्री राजीव कालरा जी, जिनके अथक प्रयास से ये VCM आज अरेंज हो पाई है। और हमारे वाइस चेयरमैन श्री यशवंत सैनी जी, कनिका जी, और आज के सभी पार्टिसिपेंट्स, उन सबका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस आज की VCM में। आप सब लोगों के आने से VCM आज की ये सक्सेस हुई है। और इसी के साथ मैं अब माइक अनुरोध करता हूँ अपने श्री चेयरमैन साहब से, मैं भी एक वेलकम एड्रेस दें। राजीव कालरा जी। Thank you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. Today, guest speaker, respected Dr. CA Girish Ahooja ji, CA Atul Agarwal ji, Program Moderator, Chairman Sikasa of CIRC and Regional Council Member of CIRC, Session Chairman CA Mahesh Kumar Gupta sir, Secretary Praveen Bansal ji, Vice Chairman Yashwant Saini ji, Treasurer CA Vaibhav Jain ji, Sikasa Chairperson CA Kanika Garg ji, CA Rajkumar Sharma ji, Muzaffarnagar Branch Chairman and Muzaffarnagar Branch Executive Members, CA Rajiv Sharma ji, and our dear members, I on behalf of Saharanpur, Muzaffarnagar and Haridwar Branch, welcome all of you. I am thankful to CA Dr. Girish Ahooja sir, who has given his kind consent for this VCM, and thankful to Shri C. Atul Agarwal ji, who has made efforts to hold this VCM. As we all know that there is a lot of changes in the provision of charitable and religious trust, and who other than Girish Ahooja sir can tell us better. I hope that everybody will take benefit of words of our guest speakers. With these words, I would give rest to my voice. Thank you. Jai Hind. Stay safe, stay healthy. Over to Parveen ji. Yes, sir. Ji. Sir, now I invite Shri Rajiv Sharma ji, Chairman Haridwar Branch, to give brief on the topic of VCM. Shri Rajiv Thank you, Sharma sir. ji. Thank you, sir. Respected Ahooja sir, our
CICASA Chairman, CIRC, Atul Agarwal ji, dignitaries of the CIRC and branch chairman Saharanpur, Rajiv Kalla ji, Muzaffarnagar branch chairman, Rajkumar Sharma ji, and all other panelists. I welcome you all in this VCM. And we are very grateful and fortunate that this time Dr. Ahuja is with us, and whatever word he says, that is the law, what I understand. And we, people says Sachin is the Bhagwan of cricket, but I say Ahuja is cricket is the Bhagwan of income tax. He has so much command over the subject, and he knows everything, each and every word. He can explain up to length and long length. He can explain every word. He is so much clear. He is so much knowledgeable person. We are very thankful and grateful that today we are fortunate to hear him on this subject, on the taxation of charitable trust and institutions. Personally, I feel there is only one section 11, which gives an exemption on this. But section itself is so long and so, so debatable, and so much litigation in this section, that it is very hard to learn this section. And every person, every officer is dealing it in its own way. Charitable trust, and this Rishikesh Haridwar is a center for charitable institutions. Most of the trust and these mutt and all these things are here. And this time government is coming so hard for last 3-4 years on these charitable trusts and institutions, that it is getting very tough to carry their activities, because sometimes they say it is charitable, sometimes they say it is not charitable. The same person will say for one institution it is charitable, another for it is not charitable. So it is always a difficult. But since Ahuja sir is here, he will make us this subject so clear that we will have no doubt in future on this subject. So because he is here and we are very eager to listen him, so I will say that much, and everybody will be benefited by his words. Thank you very much. Over to Bansal ji. Thank you, sir. Thank you, Sharma ji. Now I invite for the introduction of speaker, Shri Rajkumar Sharma ji, Muzaffarnagar branch chairman. Please, Rajkumar Sharma ji, please. Thank you, Parveen ji. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस कोरोना काल में हमें डिजिटल माध्यम से अपने आप को अपडेट रखना है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हमारे प्रोफेशन के लीजेंड आइकॉन श्री डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को हमने इनवाइट किया हुआ है। उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के लिए निकाला है, और मेरा सौभाग्य है कि उनका बायोडाटा मुझे ब्रीफ में आपसे शेयर करने का मौका मिला है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का जन्म 1946 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने बीकॉम 1965 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया है। उसके बाद एमकॉम की मास्टर डिग्री जो कॉमर्स की होती है वो उन्होंने श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी 1967 में प्राप्त की है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन्होंने 1970 में पास किया है, और वे दोनों इंटर फाइनल में रैंक होल्डर रहे हैं। और ये आज 50वीं सिल्वर जुबली इनकी जो है गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। उसके बाद यदि आप हमारे बीच होते तो सर हम आपको खड़े होकर अभिनंदन करते। अरे सर ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों की बस ठीक है, आशीर्वाद ठीक है। 50 साल प्रोफेशन में आप हुए हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। सर आपने पीएचडी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 2009 में प्राप्त की है। एंड उसके बाद में आपकी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यू आर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनली इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यू आर nominated by Government of India as member of Task Force for Redrafting Income Tax Act and New Income Tax Law, and report thereto was submitted to the Finance Ministry last year in 2019. You are
nominated by the Government of India as independent director to the Central Board of Directors of State Bank of India for 2 terms. You are nominated by the government with the approval of the Supreme Court to the Board of Directors of Unitech Limited. You are appointed as independent director in many companies. You nominated member of High Power Committee constituted by the Government of India under the chairmanship of Justice A.B. Shah, Chairman of Commission, to look into issue of applicability of MAT provision in case of foreign companies and FFI and other related direct tax issues. You author over 25 books on direct tax, both student and professional, including direct tax, compendium of issue of income tax, wealth tax, ready reckoner, etc. You are consultants on tax matter on various industry and non-profit making organization. You have delivered more than 3,500 lectures on various topics of direct tax organized by ICI, ICSI, Chamber of Commerce, Management Institute, various other organizations, etc. You patron of Tax Law Education Society, non-profit voluntary organization with the main objective to educate general public profession on taxation, law and allied matter. You are president of Sri Ram College Alumni Association for last 20 years. थैंक यू सर, आपका मुझे सौभाग्य मिला है आपका बर्डा बनने का. थैंक यू सर. धन्यवाद. धन्यवाद सर. ओवर टू परवीन जी. शर्मा जी, हमारे लर्नेड गिरीश जी का बायोडाटा तो बहुत लंबा है, इसको तो पढ़ने में जितना इतना टाइम लगा दिया, इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है. लेकिन आज क्योंकि अब ये VCM जो होती हैं ये बड़ी टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम मॉडरेटर श्री अतुल अग्रवाल जी से कि वो सेशन की शुरुआत करें और ओपनिंग रिमार्क्स दें सेशन चेयरमैन के द्वारा. थैंक यू प्रवीण सर. रेस्पेक्टेड भीष्म पितामह और ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, जो हमारे सबके पूजनीय हैं, एंड मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ ऑल 3 branches and the attendees. As of now, sir, 212 members are there who are attending this program. So without taking much of the time, I request CA Mahesh Kumar Gupta ji, as CA Mahesh Gupta ji is a senior member and a session chairman of the today's session. So I request CA Mahesh Kumar Gupta ji for his opening remark, and after that we may start the session with the respected Dr. Girish Ahuja sir. And sir, we have a good number of questions. So I request you कि 15-20 मिनट हमको लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे. आपका टाइम कितना है ये बता दीजिए. सर टाइम के लिए हमारी कोई लिमिट नहीं है सर, आपके साथ तो ये परवीन बंसल जी को कह रहे थे कि इसमें एक टाइम नहीं सर, आपके लिए कोई आपके साथ कोई लिमिटेशन नहीं है सर, हम एक्सटेंड कर लेंगे सर उसको. चलिए जी सर. सो ओवर टू सीए महेश कुमार गुप्ता जी. थैंक यू अतुल जी ऑन बिहाफ ऑफ दस. थैंक यू अतुल जी ऑन बिहाफ ऑफ सहारनपुर मुजफ्फरनगर हरिद्वार ब्रांच. वी एक्सटेंड ए हार्टी वेलकम to our respected speaker Dr. Girish Ahuja ji. We are thankful to him for giving his time in this webinar. He has been to Saharanpur on several occasions and we are lucky that today also he is here in this webinar. Because सभी speakers ने पहले बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए ज़्यादा time ना लगाते हुए I request Dr. Girish Ahuja ji to please start his deliberations. Thank you. Good afternoon to everyone. Chairman of the technical session, Mahesh Kumar Gupta ji, Central India Regional Council member, of course, Atul Agarwal ji, Chairman of the Saharanpur branch, Rajiv Kalra ji, Chairman of the Haridwar branch, Rajiv Sharma ji, Chairman, of course, of Muzaffarnagar branch, Rajkumar Sharma ji, the other dignitaries in sitting front of me. और आने का तो और भी बहुत है, मैं नाम लेना चाहूँ तो ले दूंगा. Parveen Bansal ji is the host, of course. Kanika was also there. Kanika Gar was also there. Nitin Agarwal ji, Rajiv, Sanjay Sangal ji, Yashwant Sreni ji, ladies and gentlemen. Well, friends, regarding charitable and religious trusts, let me tell you, we had made some proposal in the
redrafting, when we were redrafting the Income Tax Act, I told them at that particular point of time, there are trusts which have been registered long back, 30 years back, 40 years back, 50 years back, maybe 10 years back. And there are certain trusts which are there under 1023C. They have been given approval long back. Now, when the scrutiny assessment comes, the AO asks for a certificate of registration or certificate of approval, but they don't have that. Either it has been stolen or it has been misplaced. And if you go to the department also to ask for a copy of the certificate, it is not traceable there also. So the suggestion was made, why not everyone who is registered under 12AA or who has got approval? What is the difference between approval and registration? I'll tell you. Who has got approval under 2023C, why not let them, ask them to apply again? Once again, they should apply for re-registration or re-approval in a simplified form. कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. Just make an application, give your number, registration number, give the PAN number and the details of the trust, and you would be given a registration, re-registration number, and of course, or re-approval. हमने इतना ही सजेस्ट किया था क्योंकि लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन ये बियॉन्ड चले गए क्योंकि इन्होंने वो तुम्हारी बात को माना. They have agreed to that proposal. But what they have done now is they said whatever re-registration you are going to do or re-approval you are going to have, it will be valid for a period of 5 years. पहले permanent registration था, permanent approval था, आपको दोबारा renew नहीं कराना. We told them that we want a certificate of registration. We want a certificate of approval. Now it is digital. You will give us on digital a unique ID. And once unique ID is given, it will not be lost. And we will have comfortable position in that case. मैंने तो सिर्फ इतना कहा था. इतनी बात तो मान ली. But later on what they have said, now this re-registration or re-approval will be valid for a period of 5 years. And you will have to apply for renewal at least 6 months prior to the period of 5 years. तो ये दो चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं. देखिए हमारे पास 2 सेक्शन है. किसी ने बोला था कि सेक्शन, राजीव शर्मा जी ने कहा था we have only one section 11. ऐसा नहीं है. We have section 11 and 1 for exemption, and we also have section 1023C. 1023C limited institutions के लिए, limited charitable institution के लिए. सेक्शन 11-12 में तो चैरिटेबल पर्पस के लिए है एंड इवन रिलीजियस ट्रस्ट के लिए. पहले मैं एक को बैकग्राउंड बताऊं फिर अमेंडमेंट बताऊं. देखिए सेक्शन 215 टॉक्स अबाउट व्हाट इज अ चैरिटेबल पर्पस. इट से चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ टू द पुअर, relief to the poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment including watershed, forest and wildlife, preservation of monument and any other place of importance, and advancement of any other object of general public utility. इतनी बड़ी डेफिनेशन है चैरिटेबल पर्पस की. रिलीजियस की कोई डेफिनेशन नहीं है. रिलीजन तो होता ही प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन है. तो ये इतना बड़ा, हाँ वो ठीक है. एडवांसमेंट ऑफ चैरिटेबल, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस में अगर आप होंगे तो इट विल सेड there is a proviso there, provided that advancement of charitable purposes will not be called a charitable purpose if it involves an activity of carrying on any trade, commerce or business, or an activity of rendering any service to trade, commerce or business, whether for any consideration or for fee or for any other remuneration. याद है यही था, लेकिन उसमें एक further provided था, further provided that it will not be called called for non-charitable purposes if the donation received, income from commercial activity, receipt from commercial activity does not exceed 20% of the total receipt. यही लिखा था कि अगर तो आप पहली में हैं, क्या you are under relief to the poor, education, medical, yoga, preservation of environment, preservation of monument, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ आप incidental business कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन if you are registered under advancement of any other object of general public utility, तो उस केस में
commercial activity allowed है, but maximum receipt from that commercial activity should be 20% of the total receipt. The moment it crosses 20% total receipt, आपको exemption नहीं देंगे. ये और रिलीजन तो होता ही रिलीजन. लेकिन एक और हमारे पास सेक्शन है 1023C. जरा ध्यान से सुनना, उस सेक्शन के बारे में भी मैं आपको बता दूं. There is section called 1023C 3IAB, 1023C subclause 3IAC, 1023C subclause 3IAD, section 1023 subclause 3IAE, section 1023C IV, section 1023C V, and section 1023C VI and VIA. जरा इनको सबको आता है, लेकिन आपको क्लासेस नहीं आती होंगी, सब क्लासेस नहीं आती होगी, लेकिन आपको आता है. ये मैं बता दूं क्या है. सेक्शन 1023C 3IAB. Income of a university or educational institution not for making any profit but for imparting education shall be fully exempt if it is wholly or substantially financed by the government. Wholly or substantially financed. Similarly, 3IAC, income of a hospital or a medical institution not for making any profit but for philanthropic purposes shall be fully exempt if it is wholly or substantially financed by the government. Substantially financed का मतलब था more than 50% grant is coming from government. More than 50% grant is coming, और every year देखना है 50%. एक साल नहीं, हर साल 50% जिस साल आएगी वो बात. अब इन दोनों के लिए कोई कंडीशन नहीं है. रजिस्टर अप्रूवल के लिए कोई कंडीशन नहीं है. ऑडिट के लिए भी, टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है. 85-15% के लिए ओनली वन कंडीशन, return of income is mandatory as per section 9 subsection 4C. रिटर्न मैंडेटरी है और कोई कंडीशन है ही नहीं. अगर आप यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट हु आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और होली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. इसी तरह हॉस्पिटल का है. अब 3IAD, 3IAE, income of a university or educational institution not for making any profit but for imparting education whose gross receipt does not exceed 1 crore. 1 crore से ज्यादा नहीं है gross receipt. या income of a hospital or medical institution not for making any profit but philanthropic purposes whose gross receipt does not exceed 1 crore. इस केस में भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करना है. कॉर्पस डोनेशन भी माफ है, लेकिन मैंडेटरी क्या है? रिटर्न करना. रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. अगर आपकी ग्रॉस रिसीट चाहे वो डोनेशन से है, कॉर्पस से है, फीस है, कुछ भी है, टोटल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको कोई अप्रूवल नहीं लेनी और आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है और आपको सिर्फ रिटर्न भरनी है. अब आया IVV, आपके मतलब का नहीं है, वो नोटिफाइड चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मैं नहीं ले रहा. अब आया VI और VIA, income of a university or educational institution not for making profit but for imparting education whose total gross receipt exceed rupees 1 crore. इसी तरह हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन whose gross receipt exceed 1 crore. अब जरा ध्यान से सुनना, इनके लिए अप्रूवल लेना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं, अप्रूवल. सेक्शन 10(12) में लिखा है आपको 11-12 के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है या अप्रूवल लेना है. आप कहेंगे फर्क क्या है? अरे सर, जब आप अप्रूवल लेते हो तो 56D में अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म 56D. अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो फॉर्म 10A में अप्लाई करना पड़ता है. पहला पॉइंट ये है अप्रूवल. अब फर्क क्या है? देखिए, एजुकेशन 11-12 में भी आता है, हॉस्पिटल 11-12 में भी आते हैं और एजुकेशन हॉस्पिटल यहां भी आते हैं. अब ये आपकी मर्जी है कि आप 1023C में रहें या 11-12 में जाए. और कईयों के पास तो दोनों थे, कईयों के पास तो दोनों थे. लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, कि क्यों बताने जा रहा हूं डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आगे से जब आप री अप्रूवल के लिए करेंगे तो आप एक ही में कर सकते हो, या रजिस्ट्रेशन लोगे या अप्रूवल लोगे, दोनों अलाउड नहीं होगा. अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों अलाउड नहीं होगा. कैन यू वेट फॉर ए सेकंड? इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉल. आई विल टेक ओनली
Sorry, it was an important call, so I had to do that. हाँ, मैंने ये कहा, you may be holding both approval under section 1023C and also you may be having registration under 12AA. If you're holding one, there is no problem. If you're holding both, you will have to decide which one you want for future, either 1023C or 12AA. This decision has to be taken by educational institutions, universities, hospital or medical institution and not other. बाकी तो है ही उसमें 11-12 में. Now you have to take. Now you will ask me what is the difference between the two. अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि आपने decision लेना है. Let me explain. Number one, when you have a registration under 12AA, what happens is when there is a scrutiny assessment, during the course of scrutiny assessment, if the SSC assessing officer finds that you are misusing the object for which you were established, or you are not keeping the money under 11.5, or you are not following the object, or you are misusing the fund, the AO assessing officer may not give you exemption for that year. He may not give you exemption under 11-12 for that year. But if you have 1023C and you have filed a return and there is a scrutiny assessment, AO cannot refuse you exemption. AO mana nahi kar sakta. What will happen? AO will have to prepare a report and write to the Commissioner of Income Tax who has given an exemption. Usko bolega, kindly withdraw their approval. AO apne aap nahi keh sakta. AO will prepare a report, send it to the Commissioner exemption that he is misusing the funds or he is not following the object. Kindly withdraw their approval. The assessee will be given an opportunity of being heard. After giving an opportunity of being heard, the assessee, the Commissioner of Income Tax will decide whether to withdraw that approval or not to withdraw the approval. If he withdraws the approval, AO will not give you exemption of that year. If he does not withdraw the approval, AO will be duty bound to give you the exemption. मेरा मतलब ये हुआ कि 11-12 में तो AO को पावर है कि आपको exemption दे या ना दे क्योंकि वो देखता है आप मिसयूज कर रहे हैं. लेकिन 1023C में AO के पास पावर नहीं है. AO को लिख के भेजना पड़ेगा कमिश्नर को कि इसकी अप्रूवल विड्रॉ कर दीजिए और अप्रूवल विड्रॉ करके इनको प्लीज इनको हमें टैक्स लगाना है. ये पहला डिफरेंस है. अब दूसरा डिफरेंस ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको मैंने डाइल्यूट करा दिया है, आपके फायदे का करा दिया. Up to 31st March 2020, corpus donation, in case you are approved under 1023C, was not exempt. Corpus donation maaf nahi thi, voluntary contribution with a specific direction that it will form part of the corpus of trust was not exempt under 1023C, meaning thereby you had to spend 85% and you could accumulate only 15% per year. Corpus maaf nahi thi. हाँ, if you are registered under 12AA, corpus donation is exempt under 11 subsection 1 clause D. वहां पूरा माफ था, लेकिन यहां माफ नहीं था. यहां माफ नहीं था. लेकिन रुकिए, जब इन्होंने कहा कि आपको एक ही जगह अप्लाई करना है तो मैंने जाके उनको कहा क्या कर रहे हैं सर, कोई भी 1023C में आएगा ही नहीं क्योंकि उनको कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है. वो तो सारे 12 में आ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास तो दोनों थे. लेकिन अब क्या किया है, they have inserted explanation. ये नया अमेंडमेंट है. They have inserted explanation under 1023C. Proviso 3rd to 1023C, they have inserted an explanation saying that corpus donation on or after 1st April 2020 shall also be exempt if you are approved under section 1023C. आप exempt होंगे 1023C में अगर आपको अप्रूवल मिली हुई है, जो पहले नहीं था 1st April 2020 के बाद. तो अब तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई. वहां पर भी कॉर्पस माफ है, यहां पर भी कॉर्पस माफ है. बट वेट, there is one explanation given under section 11(1). What is that explanation? The explanation says that there is an income which you have taken into your income and expenditure account because you are following mercantile system of accounting. Income has been taken, but it has not been actually received. And you give an undertaking on Form 9A that I'll spend this income in the year in which I receive it or year following that. मैं example देता हूँ.
Suppose you have 1 crore with you, you go for a FDR of 1 crore for 5 years. 5-year FDR compound interest. In the first year, let's say 6 lakh interest has come, but it has become accrued, but it has not been received. It will be received only in the 5th year, but it has become accrued. You could give an undertaking under Form 9A on or before the due date of furnishing the return of income under 139(1), stating that this income has already been taken into account, but it has not been received. I'll spend this income in the year in which I receive it or year following that. If you do that, it is treated as deemed application of the current year. वो current year की deemed application मानकर आपको exemption दे देते हैं, लेकिन 6th year में जाकर फिर देखेंगे कि आपने वो पैसा खर्च किया कि नहीं किया. अगर नहीं करेंगे तो उस साल की वो इनकम मान ली जाएगी. उस साल की 6वें साल की तब 15% ही देंगे, 6वें साल की इनकम मानी जाएगी. ये 9A फॉर्म भरना पड़ता है ड्यू डेट से पहले. एक और भी क्लॉज है उसमें ड्यू डेट से. क्या? If you can't spend that income for any other reason, किसी और कारण से आप वो इनकम स्पेंड नहीं कर सके, तो you can give an undertaking under Form 9A before the due date of return that I will spend that income next year. मैं अगले साल खर्च कर दूंगा. तो भी ये डीम्ड एप्लीकेशन मानकर आपको इस साल एग्जेम्पशन मिल जाती है और अगले साल आपको खर्च करना होता है. और अगले साल अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो अगले साल की इनकम मान ली जाती है. ये जो एक्सप्लेनेशन 9A वाली है, ये 1023 से में अभी भी नहीं है. मतलब अगर आपको अप्रूवल मिली 1023C में, तो आपको प्लीज नोट, आपको ये नहीं लिख के दे सकते कि इनकम इज अक्रूड, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, आई विल अप्लाई इन द ईयर. फॉर्म 9A इसके लिए नहीं है. ये अभी भी यही रहे. और सेकंड, आप ये भी नहीं लिख के दे सकते आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर. ये लिख के नहीं दे सकते. ये 11 और 12 में लिख के दे सकते हैं, इसमें लिख के नहीं दे सकते. तो ये डिफरेंस अभी भी है. अगला डिफरेंस आपको पता है कि अगर 1023C में है तो ऑडिट रिपोर्ट 10BB में जाती है. अगर आप 11-12 में है तो ऑडिट रिपोर्ट 10B में जाती है, 10B में जाती है. तो ये डिफरेंसेस हैं. अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके पास दोनों हैं तो आपको एक लेना है, या 1023C या 11-12 का 12AA अब 12AB हो गया. You will have to do that, and if you do it, kindly note, बाकी तो level playing field हो गया. ये वाला we will spend it next year or we will spend it in the year in which I received or year following that, वो नहीं मिलेगा. तो ये ध्यान रखना. लेकिन हर आदमी को, अब सुन लीजिए, आपको अप्लाई करना है if you are already registered और approved. कब तक अप्लाई करना है मैं डेट बताता हूं. लेकिन you might be registered 6 months back, you might be registered 1 year back, you might be registered 20 years back, you might be registered 140 years back. Doesn't make any difference. Everyone has to apply again in a simplified form, yet to be notified. ये notify होगा. A simplified form में अप्लाई कर दीजिए for re-registration. अगर 1023C में है तो simplified form for re-approval. वो फॉर्म अभी आया नहीं है. हमने डेट एक्सटेंड करवा दी है. वैसे तो शुरू हो गया था कि 1 जून से अप्लाई करिए और लास्ट डेट 31 अगस्त थी, लेकिन ये अब एक्सटेंड हो जाएगी. लॉ में आएगा, अमेंडमेंट आएगा, लेकिन बात बता दिया है कि दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर. अब आप अप्लाई 1 अक्टूबर से पहले कर नहीं सकेंगे. 3 महीने का टाइम है. यू कैन अप्लाई फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 in a simplified form, yet to be notified, and it is only an intimation. कुछ नहीं है, intimation है. और आपको 1 महीने के अंदर अंदर री रिन्यूअल हो जाएगा और री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ये सबको करना है. मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं किया तो आप डी रजिस्टर्ड माने जाएंगे. 31 दिसंबर तक नहीं किया. मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं 31, पर ये 31 दिसंबर तक इंतजार मत करते रहना. हमारी तो आदत है लास्ट मिनट में काम करने की. अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं. सो लास्ट मिनट में मत जाना, अप्लाई करना शुरू कर देना अक्टूबर के बाद, और दिसंबर तक जो भी हो जाएगा आपको हमें उसकी री रजिस्ट्रेशन, री अप्रूवल एक यूनिक आईडी के साथ मिल जाएगी. लेकिन अब जो ये री रजिस्ट्रेशन हुआ या री अप्रूवल हुआ, this will be valid for a period of 5 years, and you will have to apply for renewal of this registration or renewal of this approval at least 6 months
prior to the completion of the period of 5 years. 5 साल से पहले, 4.5 साल से पहले आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ अप्रूवल। देखिए रजिस्ट्रेशन का सेक्शन बदलकर 12AA नाउ इट हैज बिकम 12AB, लेकिन 1023C नहीं बदला है, वो 12AA 12AB हो गया। आपको अप्लाई कर। अब आप सुनिए, जो नया ट्रस्ट बना, पहली बार बना, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो पहला पॉइंट, यू विल हैव टू अप्लाई at least 1 month before the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which you are seeking exemption. 1 महीना पहले, अभी तक तो होता था you could apply before the end of the previous year के end तक कर सकते थे। अब नहीं, 1 महीना पहले करना पड़ेगा, before the commencement of the previous year relevant to the previous assessment year for which exemption is sought. सुनिए 1 महीना पहले। आप कहोगे सर वो तो फरवरी में करना था, मैंने तो इस साल अप्लाई करना था। रुकिए, पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, तो हो सकता है आपने अप्लाई करना था नवंबर में शुरू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 1 महीना पहले। फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर टू मार्च, 1 महीना पहले 30 सितंबर तक अप्लाई कर दीजिए। लेकिन कोई कहता है सर मैंने तो 1 अप्रैल से शुरू करना था इस साल, तो 1 महीना पहले फरवरी नहीं, इस साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 1 अक्टूबर तक। लेकिन आगे से जब भी नई एप्लीकेशन जाएगी, इस साल को छोड़कर जब भी नई एप्लीकेशन जाएगी फॉर अप्रूवल, इट इज 1 month प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लेकिन मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन स्टार्ट बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, तो उसका 1 महीना पहले अप्लाई कर। अब ध्यान से सुनना, जो भी एप्लीकेशन जाएगी नए अप्रूवल की, वो अब आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा या अप्रूवल मिलेगा, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा या प्रोविजनल अप्रूवल होगा। यू कैन गेट इट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ योर चैरिटेबल एक्टिविटी, लेकिन क्या होगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल अप्रूवल वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ये 3 साल तक वैलिड होगा। जो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग भी है, अगर कोई पेंडिंग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, अप्रूवल नहीं मिला, वो भी अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी, प्रोविजनल अप्रूवल होगी, क्योंकि वो इसके साथ मर्ज हो गए। एंड यू विल बी गिवन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, एंड यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन within 6 months, sorry, after completion of 6 months of the commencement of the charitable activity, or at least 6 months prior to the completion of 3 years, whichever is earlier। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो मिला, आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू हो गई तो 6 महीने के अंदर या मिनिमम 6 months prior to the completion of 3 years, whichever is earlier, आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन परमानेंट अप्लाई करना ही करना है। और वो परमानेंट अप्रूवल 5 साल के लिए, हर 5 साल के बाद आपको करना पड़ेगा ये। लेकिन ये 3 साल है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ये नए वालों को करना है। एग्जिस्टिंग जो जिनको नहीं मिली वो भी करेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इस साल 1 अक्टूबर तक कर दीजिए, हर साल 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर है। और पहले साल अगर आप ड्यूरिंग द ईयर करेंगे तो आप 1 महीना पहले अप्लाई कर दीजिए, और वो फॉर्म में अप्लाई करिए, फॉर्म 10A और 56D दोनों पॉसिबल है, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए। एक और चीज, अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया which are contrary to the object for which you were registered, then you will have to apply for fresh registration or fresh approval within 1 month of the modification of the object or modification of your object। दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, पूरी की पूरा दोबारा अप्लाई कर। ये तो एप्लीकेशन देनी है जो मैंने बता दिया सबको, जितने भी रजिस्टर्ड हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर 2020 है। सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी आएगा, अप्लाई कर दीजिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रूवल नंबर डाल दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मिल जाएगी। डिसाइड ये करना है कि आपको अप्रूवल रखनी है कि रजिस्ट्रेशन रखनी है, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कई बार आप बाद में सोचते हैं यार मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं अप्रूवल चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके अप्रूवल ले लीजिए, एक बार अलाउड है, या अप्रूवल सरेंडर करने के रजिस्ट्रेशन ले लीजिए।
रजिस्ट्रेशन जरूरी है, चैरिटेबल ट्रस्ट की भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगला पॉइंट बता रहा हूं, अब कईयों के पास 80G है, वो भी परमानेंट है, लेकिन रुकिए, बाई 31 दिसंबर पहले वही था, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर री अप्रूवल ऑफ 80G। आपको भी इसके लिए भी री अप्रूवल अप्लाई करनी है, चाहे आपके पास ऑलरेडी है। री अप्रूवल ऑफ 80G, री अप्रूवल कब तक? वही जो डेट रजिस्ट्रेशन की है 31 दिसंबर तक कर दीजिए। डेट एक्सटेंड हो गई, नहीं तो 31 अगस्त तक करना था। ये री अप्रूवल कर दीजिए, जो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली उसका 80G खत्म हो जाएगा। एंड दिस री अप्रूव्ड वन विल बी वैलिड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये शरद जी, हाँ जी, ये डॉक्टर साहब की म्यूट हो गया है वीडियो भी, या हमारे पार्ट पर है? नहीं, डॉक्टर साहब के पार्ट पर हुआ है। सर लॉग ऑफ हो गए हैं सर। अच्छा अच्छा, एक बार कम्युनिकेट कर लीजिए। आ जाएंगे दोबारा, ठीक। अपनी जेब में थोड़ी डाल सकते हैं, इनकम तो है ही है, क्यों नहीं आएगा ये। Now sir, another question, if there is any change in the trustees, will it impact the status of a trust, or इसकी It depends upon the trust deed. अगर आप ट्रस्ट डीड के हिसाब से चेंज कर रहे हैं ट्रस्टी को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रस्ट डीड में प्रोविजन नहीं है तो फिर तो ऑब्जेक्ट को, फिर तो आप ट्रस्ट डीड को चेंज करने जा रहे हैं। अगर ट्रस्ट डीड, फिर तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। अगर उसमें आपका प्रोविजन है कि हाउ टू चेंज दी ट्रस्टीज और उसमें लिखा हुआ है, तो आप रेजोल्यूशन पास करके सारे कर लीजिए ट्रस्टी चेंज, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। Sir, one more question. Can an unregistered trust which is not filing its income tax return from last few years get dissolved by transferring its asset to another newly formed trust? So what will be the impact? सर देखिए, आप अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं जी, जो नया ट्रस्ट आएगा उससे पूछा जाएगा ये बता कहां से आई, फिर वो पकड़ा जाएगा। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको सोर्स पूछेंगे ना, टेल अस फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड these assets or these money, बस दैट्स ऑल। अब आप ट्रांसफर करिए, जो मर्जी करिए, आपका पुराने पाप को धुलेंगे तभी जब 6 साल से पुराने हो जाएंगे आप। Another question sir, जो रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज हैं हमारे, आजकल जो सोसाइटीज बनती हैं उनकी, वो भी मैंने बता दिया, वो हो सकता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है तो वहां चली जाएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिटर्न भरेंगे, लेकिन रुकिए, कोई रिटर्न नहीं भरनी है। अगर वो सिर्फ मेंबर से रिसीव करते हैं, मेंबर पे खर्च करते हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर बैंक पे पैसा जमा करा रखा है, उससे इंटरेस्ट आता है, या कोई आपने होर्डिंग लगा रखी है, वहां से एडवर्टाइजमेंट का पैसा कमाते हो, अदर देन मेंबर से जो भी आएगा उस पर टैक्स लगेगा। उस पर टैक्स, और किस हिसाब से लगेगा वो डिपेंड करेगा, आप सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सोसाइटी है तो 2.5 लाख माफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 रुपए भी माफ नहीं है। आपको पता है, पहला 10% दूसरा 10,000 20%, बाकी पे 30%। लेकिन अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो पहला 2.5 लाख माफ, बाकी वही जो इंडिविजुअल का रेट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है सर, उसमें ये कहना है मेंबर का कि अगर पहले 3 सालों में हम लोग ITR 5 फाइल करते आ रहे हैं और आगे हम 12AA में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहें तो क्या हम ले सकते हैं सर? जरूर ले सकते हैं। पिछला का एसेट की जाए है ना, वो इसको रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अगर आप 5 में कर रहे हैं तो आपको चैरिटी, पहले चैरिटेबल पर्पस में रजिस्टर्ड हैं आप चैरिटी में हैं, पहले तो आपके ऑब्जेक्ट क्या है ये बताइए। इफ योर ऑब्जेक्ट आर चैरिटेबल तो फिर आप वो वहां से इधर ट्रांसफर करेंगे।
तो उस केस में आपको पता है कि आपने पहले टैक्स दे रखा है, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दीजिए, रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ट्रांसफर करना है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, ये पहले बता दो, बगैर रजिस्टर्ड के नहीं करना है। सर क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा एक आपसे गाइडेंस जरूर चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब हम दिल्ली में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 12 और ATG में एक साथ हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यूपी में और उत्तराखंड में अप्लाई करते हैं तो कोई बात नहीं, अब नया लॉ आ गया, आप दोनों कर सकते हैं, दोनों एक साथ अप्लाई नया कर लॉ आया सकते ना, हैं। उन्होंने चेंज कर दिया। जी सर, नाउ दे आर अलाउड, पहले दिक्कत थी ये, अब कर सकते निशांत हैं। भारद्वाज जी अब को आगे ना जवाब प्रोविजनल अप्रूवल आ गई ना, इसलिए हो गया। जी सर, जी सर, जी सर, अब प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगी आप। जी सर, जी सर। One question is, sir, can AO disallow the expenses done from receipts of corpus fund? क्या फिर वही बात, कॉर्पस फंड के एक्सपेंसेस कहां से रिसीट में आ गए? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन खर्चे कहां से आए, मुझे ये बता दो, कैसे खर्चे आ गए ये बता दो। ज्यादा कह दो अगर रसीद छपाई है, एक आदमी रिसीव करने के लिए बैठा है, उससे ज्यादा खर्चा कोई हो नहीं सकता। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में खर्चे कहां से है, मेरे को ये बताओ। ये तो जबरदस्ती खर्चे क्लेम करना चाहते हैं। जी सर। वन मोर क्वेश्चन है सर, ये दिनेश गुलाटी जी ने एक दोबारा क्वेश्चन पूछा है, उसमें उनका सवाल ये है कि अर्लियर द ट्रस्ट अर्लियर गॉट द डेफिसिट एंड शोइंग डेफिसिट विदाउट क्लेमिंग एग्जेम्पशन। उन्होंने एग्जेम्पशन अपनी क्लेम ही नहीं करी जब रिटर्न फाइल करी है, तो डिपार्टमेंट ने उसको 139(9) में उसको डिफेक्टिव रिटर्न इशू कर दिया। आप उनको कहिए मेरे से बात कर लेंगे, कोई मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आ रहा है, तो उनको कहिए मेरे पे फोन पे बात कर लेंगे, तो मैं बता दूंगा 2 घंटे बात करें। अभी तो मैं कोई मेरा आने वाला है, इसलिए अभी नहीं करूंगा, बाद में। ठीक है। आई थिंक सर हमारे जो सेशन चेयरमैन है महेश कुमार गुप्ता जी, उनके भी कुछ सवाल हैं, तो बोलिए महेश जी को बोलिए तो करें। तो चेयरमैन है, चेयरमैन का तो पूरा राइट है। महेश सर, महेश कुमार गुप्ता जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ सर, आप क्वेरीज में हो गए हैं सर, हो गए, क्वेरीज में हो चुके हैं सब। चलिए थैंक यू। और किसी मेंबर का कोई सवाल सर? सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा अफजल सर से। करिए शर्मा जी करिए। सर एक एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जब दान चैरिटेबल रिलीजियस का, तो आपने बता दिया कि कोई इशू नहीं है, चाहे वो एनोनिमस है चाहे सिनोनिमस है। इशू आता है चैरिटेबल में भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब नहीं देना, बड़ी मुश्किल में वो अपना एड्रेस दे देंगे, परंतु पेन नहीं मिलता है लोगों का, तो उस कंडीशन में ट्रस्ट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होगा? ये कहना बातें बेकार हैं। डोनेशन देने वाले के पास पेन नहीं है, ये सब बेकार की बात है। अपना ही पैसा जमा करके वो दिखा देते हैं, ये नहीं होगा। वो जमाने चले गए हैं, अब जमाने को सीधी बातें करें, क्योंकि अभी एक लिस्ट बना के देनी पड़ेगी, और लिस्ट बना के देंगे तो डिफरेंस आएगा लिस्ट में। इसीलिए तो करा है उन्होंने कि लिस्ट में और आपकी क्रेडिट में डिफरेंस आता है, तो वो कहेंगे बताओ ये कहाँ से आया। ये आपको पता ही है, मैं ना बोलूं तो अच्छा है वेबिनार में कि क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ये, अरे लोगों ने तो 80G क्लेम कर रखा है विदाउट गिविंग एनी डोनेशन। रिटर्न भरते हुए देखते हैं यार, अभी तो यार चेक जमा कराने का नहीं है, 80G डाल दे, ऐसे डाल दे बोगस पे पैन नंबर ऑफ द ट्रस्ट। ये चीजें चल रही हैं। लोग 80C क्लेम कर लेते हैं विदाउट एनीथिंग कंट्रीब्यूटेड फॉर 80C। लोगों का कहना, महान लोग हैं हमारे यहाँ, तो महान काम करते हैं, ये महानता नहीं चलेगी सर आगे से। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर पेन नहीं है तो वो एनोनिमस में माना जाएगा। हाँ जी, एनोनिमस में माना जाएगा। मारा कौन जाएगा? अरे रिसिपिएंट मारा जाएगा, ट्रस्ट मारा जाएगा। रिसिपिएंट, डोनर को तो लेनी नहीं है, उसको क्या दिक्कत है? हाँ, डोनर को ले। सर कुछ और क्वेश्चन आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन। बोलिए सर, वी हैव नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट सिंस। अलाउड ही नहीं है डेप्रिसिएशन चार्ज करना। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर एप्लीकेशन मांगते ही नहीं है एसेट को। जी सर। एक ही चीज अलाउड है, या एसेट को अप्लाई कर दीजिए पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर डेप्रिसिएशन लेंगे तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड ही नहीं है, तो लॉ है। Another question, sir. Caution money deposited in students by students has not been taken back by number of students. तो उसकी इनकम मान लीजिए जब नहीं लेते तो। Otherwise, जिस साल वो ड्यू होती है नहीं लेते तो इनकम मान लीजिए, और क्या है, और अप्लाई कर दीजिए उसको। अभी तक तो आपने उसको एडवांस दिखा रखा था,
अब जब वो खत्म हो गई तो इनकम मानकर उसको फिर आप अप्लाई कर दीजिए, खत्म। एक और क्वेश्चन है सर, इफ एक्सपेंस एंड लोन रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट एक्सीड्स 100%, क्या दोबारा बोलिए सर, लोन रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट हाँ exceeds 100%, but expense is less than 85%. It will be treated as an application. सर एक चीज बताओ, पहला पॉइंट तो मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने कहा लोन रीपेमेंट इज एन एप्लीकेशन, जी सर, इंटरेस्ट इज आल्सो एप्लीकेशन। ये 85 की लिमिट में आता है, ये 85 में आता है इसमें। लेकिन एक कई लोग बड़े मजेदार सवाल पूछते हैं, सर देखिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए आया, मैंने 9 करोड़ रुपया खर्च कर लिया, तो क्या मैं 1.5 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट कर सकता हूँ? 1.5 कैसे कर सकता है भाई? तू तेरे पास तो 9 करोड़ खर्च कर दिया, बचा ही 1 करोड़ है, तो 15% कैसे कर लेगा? 15% तो तब है जब 85 से कम खर्च किया या 85 किया। अगर आपने 95% खर्च कर दिया तो आप एक्यूमुलेट तो 5 ही कर सकते हो, 15% थोड़ी कर सकते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग ये सोचते हैं कि 85 तक करेंगे तो पूरा माफ है, 15 एक्यूमुलेट हो गया, 80 करेंगे तो 80 और 15 वो और 5 का टैक्स दे दो। अगर 90 करो तो 10 ही एक्यूमुलेट करोगे, ये नहीं है कि आप 15 करोगे एक्यूमुलेट। सर वो ITAT वाले डिसीजन के लिए आप बता रहे थे जो मल्टीपल, अरे वो मैं बता दूंगा यार, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। कोई लोग आ गए हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताओ। मेरी डॉटर भी आ गई, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ गए। जी सर, जी सर, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। तो मैं सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं सर से वो केस लॉ लेकर के आई विल फॉरवर्ड इट टू ब्रांच चेयरमैन, ऑल द ब्रांच। वो ट्राइब्यूनल की जजमेंट है, ट्राइब्यूनल की, ITAT की जो वैसे तो मेरी किताब में लिखी हुई है लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त। जी सर, जी सर, जी सर। तो सेशन चेयरमैन हमारे साथ है, कोई और रिक्वेस्ट और है सर? यस सर। सुब्रोसो फाउंडेशन का अगर साइटेशन मिल जाए तो सर कमाल की बात करते हो। आजकल रजीव जी, अगर आप साइटेशन मांगते हो तो बहुत गलत चीज मांग रहे हो, क्योंकि गूगल में डालिए 1 मिनट में निकलेगा, SUBROS सुब्रोस फाउंडेशन, SUBROS, और आप गूगल में डालिए अभी मेरे सामने, अभी आपको मिल जाएगा, पूरा केस आ जाएगा सामने। ऐसे मत कहो। आजकल तो लोग हर चीज गूगल में देखते हैं, मेरे को क्यों पूछते हो? पहले मैं याद रखता था ये सर हमारे गूगल तो आप ही है सर, हमारे गूगल तो आप ही है सर। चलिए फिर भी देख लीजिए, कोई 2018 की जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। आप गूगल में डालिए सुब्रोस फाउंडेशन इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सामने आ जाए। Now I believe सारे क्वेश्चंस हमारे लगभग पूरे हो गए हैं, और इसके अलावा भी कोई अगर क्वेश्चंस हो तो आप ब्रांच को मेल लिख सकते हैं, और वो हम फिर साहब से 1-to-1 जी आप ले लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा उनका सब। जी सर, जी सर। और मैं सेशन चेयरमैन महेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा फॉर हिज कंक्लूडिंग रिमार्क। हमारे इसमें क्वेश्चन आंसर में किसी ने साइटेशन दे भी दी है सर सपोज की, ये आ गई है। 2 मिनट लगते हैं सर, साइटेशन क्या टाइम लगता है सर? आगे, थैंक यू सर। अरे सर मैंने बोला ना कुछ टाइम लगेगा ही। सीए नित्याशा गांधी जी ने, मतलब कोई भी अपने आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, गूगल तक नहीं जाना चाहता, मेरे से सुनना चाहता। बताइए। जी सर, जी सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए महेश गुप्ता जी से फॉर हिज कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ दिस सेशन। सीए महेश गुप्ता जी। थैंक यू अतुल जी। We are highly thankful to Dr. Girish Ahuja ji for his expert and distinguished deliberation. We are also thankful to C. Atul Agarwal ji for organizing this very wonderful webinar, and we hope that in future he will be cooperating Saharanpur branch in his future projects also. We thank you all the attending members of all 3 branches and all 3 executive members of 3 branches for their cooperation. With this, we thank you all the members again. Thank you. Thank you. Take care. Please stay healthy. All the best. Thank you, sir. So nice. All the best. I'm leaving the meeting. Sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you. I request Praveen Bansal ji for his vote of Thank you, sir. Thanks a lot, sir. सर मेरा कुछ आ गया, मैंने मीटिंग में निकल गया, आप वोट ऑफ थैंक करते रहिए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। राइट सर। थैंक यू सर गिरीश आहूजा सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, जो आपने अपने परिवार के समय में से निकाल कर हमें ब्रांच को दिया और सभी मेंबर्स को दिया, और सभी ब्रांचेस के जो पैनलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं, उन सब ने। मैं रुक गया, आप कहेंगे कि मैं भाग गया इसलिए मैं रुक गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अरे सर थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सभी ब्रांच के जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत धन्यवाद। ये क्वेरी सेशन बहुत अच्छा रहा। क्वेरी सेशन सबका क्वेरीज का बड़े अच्छे तरीके से सुना गया और बहुत सेटिस्फैक्ट्री डॉक्टर आहूजा द्वारा रिप्लाई दिया गया। ये डेफिनेटली इट विल बी ए वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव सेमिनार फॉर दी मेंबर्स। और आप सभी ने इस वेबिनार में हिस्सा लेकर के बहुत इसको कामयाब बनाया है। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स और दी पैनलिस्ट एंड डॉक्टर आहूजा एंड Thank you, sir. our moderator अतुल अग्रवाल जी और प्रोग्राम चेयरमैन सेशन चेयरमैन श्री महेश गुप्ता जी। आप सबका बहुत बहुत सहारनपुर ब्रांच की ओर से मैं थैंक यू करता हूं। और जो हमारी मुजफ्फरनगर और हरिद्वार ब्रांच के ऑफिस बियरर्स आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। आप सबके कॉमन एफर्ट से ये एक वेबिनार हमारी बहुत सक्सेसफुल वेबिनार बनी है। इस सब के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड सर आपकी विद योर परमिशन अलाउ मी, डॉक्टर साहब से मैं परमिशन ले रहा हूँ, अगर कुछ मेंबर्स को ईमेल आईडी वगैरह आपका शेयर करना हो तो हाँ दे दीजिए नो प्रॉब्लम। जी सर। जी पर सर, उनको थैंक यू वेरी बोलिए मच। अपना उस पे टेलीफोन नंबर लिखें, क्योंकि मैं जी सर, ईमेल जी में सर। रिप्लाई नहीं करता, टेलीफोन पे रिप्लाई करूंगा। जी सर। जी सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैं राजीव जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसमें चैट बॉक्स में ना सर का, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ईमेल आईडी मांग रहे हैं सर का, तो जी सर दे दूंगा सर। चलिए सर, ऑल द Thank you, sir. बेस्ट। Thank you, कालरा जी sir. ठीक है। राजीव नमस्कार, कालरा sir. जी बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। राइट सर, राइट सर। थैंक यू एम के गुप्ता सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू एवरीवन। So, sir, अभी कोई और क्वेश्चंस वगैरह हो तो बता दीजिए। डॉक्टर साहब तो खैर चले गए हैं। I'm sure this deliberation you all must have enjoyed, and the attendees might have also been enjoyed this deliberation. Definitely sir, Rest definitely. of Saharanpur branch and Muzaffarnagar branch, we will try to have a deliberation of CA Bimal Jain ji also as soon as possible. और इतनी इंफॉर्मेटिव ये रहा। मुजफ्फरनगर ब्रांच ने बड़ा एफर्ट किया है और हरिद्वार ब्रांच ने भी बड़ा एफर्ट किया है, सो दैट टुडे आज हमारे साथ डॉक्टर साहब आना नहीं चाहते थे। उनका कहना ये था कि मेरे डेलिब्रेशन बहुत हो गए हैं और मेरी मीटिंग्स में 50, 40, 60 लोग ही प्रेजेंट हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको गारंटी ली सर कि हमारे यहाँ कम से कम 100 वाले हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ब्रांचेस कि मेरे यहाँ आज 248 से ऊपर थे और वो पूरे टाइम यहाँ हमारे साथ जुड़े रहे। इस चीज के लिए आप सभी तीनों ब्रांच के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से फॉर डूइंग। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपका सर, आपने मैनेज कराया। इट इज वी आर थैंकफुल। वेबिनार होल्ड करी और सबकी थैंकफुल टू एवरीबॉडी। आपने धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। इसी वेबिनार में सबसे मुलाकात हो गई। नहीं और आपने सर अतुल जी बहुत ही अच्छे तरीके से सबकी क्वेरीज हैंडल की और सबको सॉल्यूशन कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये मेरी ड्यूटी थी और मैंने अपनी ड्यूटी को, जिम्मेदारी को पूरा किया है। नहीं सर, बहुत अच्छी और मैं समझता हूँ मैं आप सबके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा और आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। अतुल सर, आपने 100 का टारगेट दिया था, हमने डबल कर दी है, 2.5 गुना कर दिए। जी सर, जी सर, जी सर। Credit goes to Kalra ji. Credit goes to Kalra ji because he has made a lot of efforts. अरे नहीं सर, नहीं सर, सभी का मिला जुला प्रयास है सर। सबको नमस्कार है शरद जी। शरद जी, there is always one who takes lead. यस सर, हमारी टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी हमारे साथ हैं। हाँ शरद जी को सर सॉरी यार फॉरगेट। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर टेक्निकल सपोर्ट। बीच में Thank you sir. Should we keep part? Right sir. Okay, namaste. Bye everybody. Thank you very much. Thank you to all of you sir. All of you, thank you. Thank you जी।